नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां सुखपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवना प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्. Anitaji, please continue. Thank you, ma'am. Truly a melodious voice. So let me begin with this beautiful introduction of Dr. Pradnya Akkalkotkar. While we've heard her melodious voice, so her hobby is classical singing, and that's part of her description. But having said that, she is a gold medalist in Ayurveda and is a consulting Ayurveda Vaidya since 1993. Her specialty is Panchakarma, and she was recently facilitated at the National Workshop for Agni Karma and Viddha Karma. She's teaching Ayurveda in India and abroad since 1999, has visited Italy, Israel, USA, UK, Holland, Germany, Kenya for teaching and spreading this wonderful knowledge of Ayurveda. She has been an assistant director of Ayurveda Research Institute for almost 10 years from 1997 to 2006 and has also written 2 books on the said subject. She's been a team leader in making a CD-ROM for Ahar and Panchakarma section of Ayurveda. And she's currently working as a lifestyle consultant. So without any delay, let's begin into our topic for today, which is Parkinson's and how to manage it effectively. And joining us is our wonderful Nisha ji. She requires no introduction because that's how we are all connected. So with that note, Pradnya ma'am, Nisha ji, off to you. Thank you so much. Thank you so much for a wonderful introduction. You are praising me like anything. See, I am a very ordinary Vaidya, but I was lucky to get a lot of opportunities by God's and my parents' grace. And I love Ayurveda and I love what I do. So I'm really fortunate who can do what he or she wants. So, and that's why Ayurveda and music is my passion. And I'm pursuing that since 93. Of course, music I was learning since childhood. But anyway, I'm practicing Ayurveda since 93. And my journey was wonderful. Recently, I have started working with a super specialty of Ayurveda, that is a parasurgical procedure known as Viddha Karma and Agni Karma. And recently, that has been my passion since 2 years. I will be talking about that. I'll be showing you the demonstrations, and I will explain you how wonderfully all the diseases can be managed with Viddha Karma and Agni Karma. So, without wasting any time, let's start with our today's topic. Parkinson's disease. I will be going very systematically. First of all, I will just give you the introduction or overview. We will talk about the causes, about the symptoms, and then our mastery, how to manage it with the help of Ayurveda and of course with the Karma and Agni Karma. Parkinson's disease is a disease which is related with nervous system. So, what happens? There is a damage of brain cells which produce dopamine. If you want to know the scientific name of the part which gets affected, it is known as substantia nigra.
which produces dopamine. As you very well know that in brain or in everywhere in the body, there are some organs which produce some kind of hormones or secretions which control the body. So this dopamine hormone is very important. Later, I'm going to talk about that as well. So somehow that part gets affected, and there is a less or almost no production of that dopamine, and that's why there are some symptoms which gradually progress, and by the after few years it really becomes a problem. But the good news is, if it is in an initial stage or even in mid stage, with a lot of other sciences other than allopathy, we are able to manage it. I'm using the word managing it. This cannot be cured. Total cure is not possible. Somehow you can manage living with that. And well, it depends on your how you look at it. You can be even positive. So basically, this disease is a combination of uh, genetic and environmental factors such as exposure to toxins. So the reasons for this disease is basically, one is genetic, which cannot be controlled, and the other is exposure to the toxin. I'm going to talk about that, how to avoid or how to prevent that. Initially, I'm just going to brief it, and then we will see each and every point in much detail. Basically, the symptoms include, there is a loss of muscle control, slowed movements, tremors. Tremors means kapna. This is a tremor. Usually, tremors are patient shows tremors while the person is working, some holding, some lifting or something. But peculiarity of Parkinson disease tremors is, the person gets tremors when the person's hand or leg is resting. So the whenever the part is resting, then also you see the tremors, which are rhythmic shaking of muscles, even if you are not using them. So this is a peculiarity, or this is a very important symptom by which you can diagnose Parkinson other than any other disease, because there can be so many other diseases involved whenever there is a tremor. But this particular disease, the tremors are there even if the muscles are resting. This you have to remember. And rigidity and stiffness is some the advanced symptom. All the muscles become stiff. We call it as spastic. This rigidity is known as laid pipe rigidity. That means it's really firm rigidity, and constant unchanging stiffness is there, and that's why there are jerky movements like this happens, especially when somebody is in a resting pose. The hand or the legs are shaking continuously, and because of this stiffness and rigidity, there is an unstable posture and a different walking gait. So the person basically moves forward. This is the typical of Parkinson disease. The person really bends forward, and he is walking like a baby steps. So the way we normally walk, you can make out that how the Parkinson person is walking. Usually appears when the disease gets worse. So this change in gait and lot of tremors and happening, they don't appear initially. So there are some other symptoms also. For example, blinking less. Blinking of eyes. If we take this symptom, there are so many diseases related with this, including hypertension, that is blood pressure, or psychological problems, or some problems with the eyes. But here, peculiarity is that there is less blinking. So you can make out that. Then the handwriting changes. Of course, if there are tremors, how can the handwriting be the same? Next is very interesting symptom. The facial expressions reduce because the muscles of the face also don't work. So when we laugh, there are so many muscles we are using, or when we are angry or somehow we express ourselves, so many muscles are involved. But in this disease, since the muscles cannot move properly, there is the face which has less expressions. Then there is one serious symptom, that there is a problem in swallowing, which can lead to fatal conditions like pneumonia or choking. Problem in taking the food.
So it can go to the lungs, or it can choke you up if it stays over here, and which can lead to serious problems. But this doesn't happen initially, it's in the next stages. Then, because of less reduced muscle control in throat and chest, there is the voice also changes. You all know, then when we talk, there are the muscles of this area which help us to talk. So when this affects these muscles also, so there is a change in the voice as well. There can be lower blood pressure. There can be anosmia. That means you cannot smell. In COVID, most of us have experienced this terrible term anosmia. You can't smell. So itna bura lagta hai, you can't even smell shampoo, nothing. So same symptom is here as well. Naturally, because of this disease is not such a pleasant thing. So there is a depression. There are sleeping disorders, trouble in thinking and focusing. So this is very important, trouble in thinking and focusing. And that's why it has a really serious effect on the patient's life. Dementia, anxiety, depression, less ability to speak, eat, chew, swallow. These are very common. And the main thing is that the person has to take help to even dress and bath. So the person cannot live independently in later stages. Sometimes while walking, there are so many tremors that there is an unstable gait, and that's why the person feels like he can fall down. So he stops all the movements. He is reluctant to move from here and there. The thing is that why this happens, such a terrible disease, why it happens. First is, to be honest, it is idiopathic. Idiopathic means you cannot explain why. कैसे हो गया पता नहीं, हो गया. दूसरा है genetics. Genetically it can be there. And the third is very important, is exposure to pesticides. All of us are really facing this problem. सब पे pesticides आप sprinkle करते हो, तो जो स्प्रिंकल करता है वो फार्मर तो वो सफर हो ही जाता है, लेकिन हम कंज्यूमर्स भी सफर हो जाते हैं. Then the other group of people who suffer from Parkinson disease because of their profession are the people who do the welding. Welding में जो अनावश्यक गैसेस फॉर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी पार्किंसनिज्म आ सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर रीजन टू हैव पार्किंसंस. लोग ना ये पार्किंसनिज्म क्यों होता है इसके बारे में बात कर रहे थे. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, शायद से किसी को नहीं समझ में आया तो ये रिपीटेशन भी चलेगा. पहला कारण है पार्किंसनिज्म आने के लिए, पहला इसको बोलते हैं इडियोपैथिक, माने कि उसको कोई भी कारण नहीं, कैसे हुआ पता नहीं. सो ये बहुत कॉमनली बहुत सारे डिसीजेस के बारे में हमें बोलना पड़ता है. जैसे कि कैंसर क्यों पक्का तो पता नहीं होता. हम बोलते हैं लंग कैंसर आपको स्मोकिंग से हो जाता है, लेकिन बाकी कोई टाइप के कैंसर है वो क्यों होता है उसका पता ही नहीं चलता. दूसरा फैक्टर है एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स. जो हमारा धान उगता है या फल या सब्जियां उगती है, उसमें जो कीटकनाशक बोलते हैं, उसकी जो ऐसे कोई द्रव्य उस पर डाले जाते हैं कि ताकि वो खराब न हो, कीड़े मकोड़े उसको खा न जाए. इसके लिए जो वो अनवांटेड उसमें जो हम स्प्रिंकल करते हैं, उसकी वजह से भी पार्किंसनिज्म आता है. तीसरी बात है कि जो फार्मर है वो अपने धान पे या अपने वेजिटेबल्स पे वो स्प्रिंकल करता है, तो उसको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और हम लोग जो वो कंज्यूम करते हैं उनको भी वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड करके एक गैस है, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो गैस है वो जहरीला गैस होता है. तो अगर किसी भी कारण से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा देर संपर्क आए तो पार्किंसनिज्म होने के चांसेस होते हैं. कभी कभार फैक्ट्री के उधर ये गैसेस पाए जाते हैं.
आपको सबको पता होगा कि भोपाल गैस दुर्घटना, हम भी छोटे थे, आपको आप में से शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन हम जब छोटे थे तो भोपाल के इधर कोई गैस दुर्घटना हो गई थी। उधर कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ही प्रचुर मात्रा में फैलाव हुआ था, तो बहुत से लोगों को बहुत सारी तकलीफें आ गई, सिर्फ पार्किंसोनिज्म नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक कारण है कि जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। उसके बाद में एक कारण वैशिष्ट्यपूर्ण है, ये स्पोर्ट्स इंजुरीज से रिलेटेड है। हम लोग बॉक्सिंग एंजॉय करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, लेकिन ये जब स्पोर्ट्स हम खेलते हैं तब हमें बहुत सारी इंजुरीज होती है, वो हम गिर जाते हैं, तो ये जो इंजुरीज होते हैं उसकी वजह से भी पार्किंसोनिज्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए हमने ये बहुत सारे रीजंस देखे हैं कि किसके वास्ते, किसके किसके कारण पार्किंसोनिज्म आता है, ताकि वो कारण हम अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। अभी पार्किंसोनिज्म ही है ऐसा पक्का कैसा जानेंगे? तो इसके लिए हम पहले करते हैं ब्लड टेस्ट, माने कि खून की जांच। खून की जांच से ये डिसीज तो डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन बाकी कुछ नहीं ना ऐसा हम देखते। उसके बाद में बाकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसमें है सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन निकालते हैं, नहीं तो एमआरआई निकालते हैं, नहीं तो पेट स्कैन करके एक बहुत एडवांस टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि शरीर में किधर कैंसर है या नहीं, और है तो कितना फैला है। ये जांचें बहुत महंगी और बहुत पेनफुल होती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए कभी कभार इनकी जरूरत पड़ती है, ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली पार्किंसोनिज्म है या नहीं। तो ये जो जांच हम करते हैं उसके बाद में हम ट्रीटमेंट का विचार कर सकते हैं। पहले ही मैंने बताया है कि दुर्भाग्यवश ये रोग अच्छा और ठीक होने वाला नहीं होता, लेकिन उसके साथ में हम रह सकते हैं। ऐसे कई रोग हम अभी फेस कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, माने कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या कोई कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं कि उनके साथ ही हमें जीना पड़ता है, हमारी जिंदगी उनके साथ ही कटती है। तो इसमें से पार्किंसोनिज्म ये एक डिसीज है, लेकिन उसको अच्छी तरह से मैनेज हम कर पाते हैं अगर अच्छी तरह से हम केयर ले, तो ये होता है। तो पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो है मेडिसिन। तो लॉजिक है कि डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए पार्किंसोनिज्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से डोपामाइन देंगे। तो ये जो केमिकल है उसका सप्लाई हम बाहर से करते हैं, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, शुरुआत के दिन में ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती है बॉडी, लेकिन बाद में ज्यादा मात्रा देके भी डोपामिन का उतना असर होता नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से सोचने वाली है। आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या फर्क है बेसिकली, ये तो मैं बाद में बताने वाली ही हूँ, लेकिन इसी बहाने से मैं एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में सप्लीमेंट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे कि डोपामिन नहीं है तो सप्लाई कर दो, क्योंकि आयुर्वेद क्या सोचता है, दो तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। आप एक कोई आइलैंड में हो जिधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेड या कोई खाने की चीज आपको रेडीमेड दे सकते हैं, वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो एक ऐसा डिवाइस या ऐसी आर्ट देते हैं कि जिससे आप उधर गुजारा कर सकते हो। तो आयुर्वेद का दृष्टिकोण ये है कि हो नहीं रहा प्रोड्यूस पता है, लेकिन शरीर को ऐसी कोई स्फूर्ति दी जाए कि उससे डोपामिन शरीर करने का प्रयास तक करे। तो ऐसा नेचुरल कुछ हम देते हैं जिससे ये प्रोसेस है उसको थोड़ी सी चालना मिलती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 100% हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है कि बॉडी को स्टिमुलस देते हैं कि आप डोपामिन प्रोड्यूस करो, ना कि रेडीमेड डोपामिन देके बाद में उसका कोई असर नहीं होता। ऐसी स्थिति शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो अगेन आई एम कमिंग टू एलोपैथी, में एलोपैथी के बारे में बोल रही हूँ। देखो, मैं क्रिटिक नहीं कर रही, एलोपैथी भी बहुत अच्छा है, आयुर्वेद भी बहुत अच्छा है, दोनों शास्त्रों की अपनी अपनी मर्यादा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि किधर किस शास्त्र का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी है।
तो डोपामिन हम देते हैं और पेशेंट को अच्छी तरह से उसका रिलीफ का कुछ दिनों के लिए आता है। दूसरा है, अगर ये डोपामिन बिल्कुल ही नहीं काम करे तो हम सर्जरी करके वो जो पार्ट जो डोपामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको कुछ तो स्टिमुलस देते हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, इतनी कॉमनली ये यूज नहीं करते। एक और बात है कि सिर्फ डोपामिन देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाकी जो सिम्टम्स है जैसे कि फटीग है, निद्रा न आना, बद्धकोष्ठता माने टट्टी साफ न होना, डिप्रेशन माने कि उदासीनता, डिमेंशिया मतलब भूल जाना, एंजाइटी मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगना, चिंता करना, ये जो लक्षण है उसे हमें सिम्टोमेटिक ट्रीट करना पड़ता है। माने कि अगर फटीग है, नींद अच्छी तरह से ना आए तो नींद आने की गोली दे, ऐसा ऐसा हमें ट्रीट करना पड़ता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमें इस डिसीज के साथ ही जीना है तो क्या करना है। तो पहले है कि आपको हेल्प चाहिए, ये आपको खुद को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज जब ज्यादा होता है ना तो आप खुद से मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये मन में बिठा के पहले से ही प्रिपेयर करना माइंड और उसी हिसाब से चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है। दूसरी बात है कि आपकी जो दवा आपके डॉक्टर ने दी है वो अत्यंत नियमित रूप से सेवन करना बहुत जरूरी है, स्किप न करें। मैं हमेशा बोलती हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग माने कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो कोई हम दवा लेते हैं और कोई पेशेंट बीच में ही वो छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं नहीं अभी मेरा नॉर्मल है। तो ये बहुत रिस्क है, क्योंकि ऐसा अगर गैप आया ना तो बाद में ब्लड प्रेशर शूट होता है। तो ऐसा कभी भी पार्किंसोनिज्म के रुग्णों को नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है वो बहुत ही नियमित रूप से आपको दवाई लेना जरूरी है। दूसरी एक केयर हम क्या कर सकते हैं, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में ना अचानक कोई भी स्ट्रेंज सिम्टम आ सकता है तो उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। उसको इग्नोर कभी भी ना करना, चाहे वो छोटी बात हो वो भी आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार ये छोटा दिखने वाला सिम्टम बाद में बहुत उपद्रव दे सकता है। तो इसी प्रकार से लिविंग विद पार्किंसोनिज्म में बहुत नियमित रूप से आपकी दवाई लेना, छोटे छोटे लक्षण भी इग्नोर न करके डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप करना, ये हमेशा हमें करना ही चाहिए। अभी एक हम ऐसा देखते हैं कि क्या क्या कोई अन्न पदार्थ है कि जो हम पार्किंसोनिज्म को वर्स्ट कर सकता है। तो ऐसे अन्न पदार्थ है, जब मैं आयुर्वेद से मैनेजमेंट की बात करने वाली हूँ तब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बोलने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं आइडिया दे देती हूँ। जिस अन्न पदार्थ में ज्यादा सैचुरेटेड फैट रहते हैं, यानी कि तली हुई चीजें हैं, ऐसे कुछ पदार्थ है कि जो पचन के लिए ज्यादा हेवी रहते हैं, इससे पार्किंसोनिज्म के सिम्टम वर्स्ट हो सकते हैं। दूसरी बात है पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड, यानी कि फास्ट फूड। आपको सबको पता है कि फास्ट फूड वैसे भी हमारे आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पार्किंसोनिज्म जैसे डिसीज में ये बहुत ही भयावह और बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। एक्सेस प्रोटीन लेना भी वो व्यक्ति हजम नहीं कर पाता, तो ज्यादा प्रोटीन ले तो भी पार्किंसोनिज्म के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा शक्कर ले, स्पेशली व्हाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर पार्किंसोनिज्म पीपल। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज अल्कोहल। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी बैड। मदिरा का सेवन करना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसके लिए और एक है, मैं बात कर रही थी अल्कोहल की। अल्कोहल बहुत सारे डिसीजेस में तो ना ही है, लेकिन ऐसे जो डिसीजेस होते हैं कि जो बहुत सीरियस बीमारी होती है उसमें अल्कोहल कैन वर्क लाइक अ टॉक्सिन, उसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो अल्कोहल आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले ही बोली है कि ये डिसीज में ना मसल काम नहीं करते। तो मसल किधर किधर रहते हैं,
चूइंग में भी मसल लगते हैं, निगलने में भी मसल लगते हैं। तो ये जो एक्शन है चूइंग, चबाने की एक्शन भी बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए इंडाइजेशन होता है। आप सबको पता है कि हम क्यों चबाते हैं अन्न, ताकि उसकी टेस्ट भी लगे और इधर से ही उसका पचन शुरू होता है। तो अगर पार्किंसोनिज्म के पेशेंट ने कोई हार्ड फूड लिया, जैसे कि गन्ना या कोई हार्ड, तो वो ठीक से वो चबा नहीं पाता और वो रिस्क फैक्टर बनता है। तो इसके लिए सॉफ्ट एंड फ्रेश फूड इज रिकमेंडेड। गरम और ताजा खाना, घर का बना हुआ, यही पार्किंसोनिज्म के पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा साबित होता है। ये लोग ना हमेशा मेंटल फटीग, माने कि उनको थकान आती है मानसिक, उनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, उनको एक ही समय में दो अगर चीजें आप उनको मतलब करने लगो तो वो नहीं कर सकते। मतलब कि देख के किधर तो फोन भी उठाना है या बेल बजी तो दरवाजा खोलना है, ऐसा मल्टीटास्किंग वो कर ही नहीं पाते। तो इसका हमें पूरा ख्याल रख के फैमिली मेंबर्स और उनको बहुत अच्छी तरह से केयर लेनी पड़ती है कि एक टाइम उनको एक ही बात कही जाए, और वो जब तक वो पूरी ना करे तब तक दूसरी कोई भी इंस्ट्रक्शन उनको न दी जाए, नहीं तो उनका कंफ्यूजन बढ़ता है। इट इज वेरी कॉमनली सीन, बहुत कॉमन है कि पुरुष जो होते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जेंडर बायस थिंग, बट पुरुष जो होते हैं ना, अगर वो फोन पे बात कर रहे हो और अंदर से आवाज है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं अरे फोन पर बोलते हो ना, मीन्स एनी वे द मेल्स कैनॉट डू द मल्टीटास्किंग। तो ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट डिसीज है कि इसमें मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द पेशेंट। वो एक टाइम में एक ही काम, और वो भी बहुत स्लो कर सकता है। तो इससे हमें समझ के उनको सहायता करनी होगी, उनको सहकार्य देना होगा। अभी क्या है कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब क्या, ये बढ़ता ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा धीमी गति से बढ़ाने देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जो चीजों में नेचुरल डोपामिन है, ऐसी चीजें अगर उनके खाने में दी जाए तो उसका नेचुरल उनका डोपामिन बढ़ता है, जैसे कि वॉलनट, कैशू, बेरीज। लेकिन ये भी फूड देने वक्त आपको उसकी मात्रा का ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा नहीं देना है क्योंकि उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता पाता, तो छोटे छोटे क्वांटिटीज में ये देना है। लीफी वेजिटेबल का भी रोल है, जो हम पाले भाजी बोलते हैं, वो भी अच्छे फ्रेश अगर दी जाए तो उसका भी उनको ज्यादा लाभ हो सकता है। अभी ये जो है तो नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज, अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा हो तो हमें सर्जिकल एक्शन लेना पड़ता है, हमें सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ब्रेन का जो पार्ट, वो जो पार्ट एक्शन नहीं कर रहा, उसको एक्टिवेट करते हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन, बट सर्जिकल प्रोसीजर इज द लास्ट ऑप्शन। लेकिन ये कॉमनली हम नहीं कर सकते क्योंकि सभी की फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑपरेशन को फॉर नहीं हो सकती। पैसा भी ज्यादा लगता है, उनका खुद का वो उनका प्रकृति या उनका हेल्थ उतना अच्छा चाहिए कि वो टॉलरेट कर सके। तो हम अभी क्या करते हैं, ये मैंने कॉमनली आपको एलोपैथी के दृष्टिकोण से बताया कि क्या होता है पार्किंसोनिज्म और वो लोग क्या करते हैं। अभी जमाना कैसा है पता है, होलिस्टिक अप्रोच। कुछ भी चीज हो तो उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर देखा जाए तो हमें सॉल्यूशन अच्छी तरह से वी कैन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। अगर डिफरेंट डिफरेंट शास्त्रों के दृष्टिकोण से अगर एक ही चीज की तरफ हमें देखे तो हमें ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें का एक महत्वपूर्ण है आयुर्वेद, दूसरा है योग। तो योग और मुद्रा के बारे में निशा जी आपको बहुत बताने वाली हूँ। मैं अभी आयुर्वेद का इसमें क्या रोल है ये आपको बताती हूँ। और गुड न्यूज इज दैट आयुर्वेद रियली हेल्प्स सच पीपल इन अ बेटर फैशन टू हैव देयर लाइफ नाइस। उनकी उम्र भी बढ़ती है और जो उम्र बढ़ती है उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ऐसा कुछ आयुर्वेद में उपचार है।
आयुर्वेद आपको पता है कि आयुर्वेद एंड योग आर ये दीज आर द थिंग्स विच वी गिव टू द वर्ल्ड। हमारे विश्व को ये हमारे से भारत की ये देन है। तो आयुर्वेद में दो शब्द है, आयु एंड वेद। आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स टू नो। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद ये है, ये जीवन जीने की कला है। और इसमें न कि सिर्फ मेडिकल एंगल है, लेकिन पहला एंगल है कि कोई भी बीमार ही न पड़े, ऐसा कुछ उन्होंने शास्त्र बताया है कि अगर उसके लाइफ पे आप जीते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते। इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आयुर्वेद, देयर आर फेयर चांसेस दैट यू विल बी हेल्दी, you will not be sick anymore. But if at all you are sick, Ayurved provides medicaments as well. अगर आप फिर भी अगर रोगग्रस्त हो गए तो उसके लिए उपचार भी आयुर्वेद में है। तो ये आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है कि उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। आयुर्वेद जैसे कि नाम से ही आप पता कर सकते हो, ये वेद का पार्ट है। वेद ये बहुत प्राचीन ज्ञान के स्रोत है। तो आयुर्वेद भी अथर्ववेद का उपवेद है। आपको सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, ऐसे 4 वेद है। तो इसमें के अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद बताया गया है। और आयुर्वेद को अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कटती है। लेकिन शुरुआत से इसका अगर आपने यूज किया तो आपके अंतिम दिन में भी आपको ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। आयुर्वेद में और एक वैशिष्ट्य है कि आयुर्वेद के सिद्धांत है जो कभी भी नहीं बदलते। इतने साल हो गए लेकिन आयुर्वेद का एक भी सिद्धांत बदला नहीं है। Opposite to that, allopathy is a comparatively new science, so the principles are changing. मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो ऐसा एक मूवमेंट आया था कि डोंट ब्रेस्ट फीड द चिल्ड्रन। जब मैं छोटी थी तो एक ऐसा विचार प्रवाह था कि माँ का दूध बच्चे को देना नहीं चाहिए क्योंकि उससे माँ का नुकसान होता है, ऐसा कोई मत प्रवाह था। तो कई साल लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते और अभी हम बहुत रेकमेंड करते हैं कि माँ को बच्चे को माँ का ही दूध देना जरूरी है। तो ऐसा उनके जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके जो एंटीबायोटिक्स है ना, तो एक एंटीबायोटिक अगर आज लागू हुआ तो कई महीने को बाद वो एंटीबायोटिक लागू नहीं होता, माने कि सब वो चेंज करते रहते हैं। मैं अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी साइंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स हाउ एलोपैथी एंड आयुर्वेद इज डिफरेंट। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो कभी भी बदलते नहीं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से हमें कैसा जीना चाहिए ऐसा विस्तार से बताया गया है। और वो प्रिंसिपल्स का ही उपयोग करके किसी भी रोग में हम वो यूज कर सकते हैं, भले वो कैंसर हो, पार्किंसोनिज्म हो या कोई छोटा डिसीज हो। लेकिन हर कोई डिसीज की सॉल्यूशन आयुर्वेद में जरूर है। एक और भी ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद में फास्ट क्योर नहीं है, लेकिन आज मैं जो उपचार पद्धति के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो इंस्टेंट रिलीफ देने वाला है। तो आयुर्वेद में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत स्लो उसका रिजल्ट होता है। आयुर्वेद में 3 दोष, मतलब देयर आर 3 एनर्जीज, जो 3 एनर्जीज है उससे हमारा शरीर कंट्रोल करते हैं। उसको बोलते हैं वात, पित्त, कफ। वात माने क्या? हमारा शरीर में बहुत सारी हलचल शुरू होती है, तो उस हलचल किसके कारण होती है? वो वात के कारण होती है। चाहे वो मन की हलचल हो, चाहे वो शारीरिक हलचल हो, या अभी आप लोग सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये मेंटल हलचल हो, सभी वात के अंडर आती है। दूसरा है पित्त। पित्त माने क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। जो पचाता है वो पित्त, और जिससे हम देख पाते हैं वो भी है पित्त। और तीसरा है कफ। कफ माने क्या? स्ट्रक्चर, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है, उसको हम कफ बोलते हैं। तो इन 3 एनर्जियों से हमारा शरीर बनता है। और अगर ये 3 एनर्जीज बैलेंस रहती है तो हम अच्छे रहते हैं। उसमें कोई गड़बड़ हो तो हम रोगी होते हैं। तो ये पहले बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये अल्जाइमर डिसीज में होता क्या है?
इसमें क्या होता है, वात करके जो मेजर दोष है वो बिगड़ता है, और वात दोष इतना इतना स्ट्रांग रहता है कि अगर वो बिगड़ गया तो वो हैवॉक कर देता है, वो छोड़ेगा नहीं। हम मराठी में बोलते हैं असेल तर सूत नाहीतर भूक, मीन्स इफ इट इज इन अ बैलेंस कंडीशन इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, बट इफ इट इज इम्बैलेंस कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली पार्किंसोनिज्म इज अ डिसीज which is related with vata, and that's why it is very difficult to be cured. वो क्योर हो ही नहीं सकता, इससे ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वात दोष बहुत अच्छी तरह से, ये डिसीज के बारे में जब सोचते हैं तो हमें उसके बारे में सोचना महत्वपूर्ण होता है। दूसरा एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हमें अगर अच्छी तरह से जीना है तो तीन बातों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। एक है डाइट यानी कि आहार, दूसरा है निद्रा यानी कि स्लीप, और तीसरा है ब्रह्मचर्य यानी कि सेक्सुअल लाइफ। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। ये 3 खंबे हैं जिसके ऊपर हमारा लाइफ बना रहता है। अगर इसमें से कोई मेजर खंबे को अगर कोई धक्का लगे तो आप जरूर बीमार रहोगे। माने कि अच्छा खाया नहीं तो भी प्रॉब्लम है, अच्छी तरह सोए नहीं तो भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल लाइफ में कोई गड़बड़ है तो पक्का ही प्रॉब्लम है। तो इसी हिसाब से आयुर्वेद में ये 3 चीजों का यूज कैसा करना चाहिए ये बहुत डिटेल में बताया है। और पार्किंसोनिज्म मैनेज करने में ये तीनों का मैं उल्लेख करने वाली हूँ, और इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। मैं एक चीज आपको कहना महत्वपूर्ण भूल गई हूँ। वो जो डोपामिन जो है ना, वो उसका प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं होता। वो क्या करता है पता है शरीर में? वो मोटिवेशन देता है, माने कि आपको कुछ तो प्रेरणा देता है कि उठो करो कुछ तो। अगर वो ही कम है तो हमें कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलती, हम ऐसे ही उदास बैठे रहते हैं। दूसरा है डोपामिन से हमारी स्मृति बढ़ती है, तो हम याद कर देते हैं। तो ऑब्वियस है कि पार्किंसोनिज्म में आपकी स्मृति भ्रंश ही होगा। और तीसरा जो काम है डोपामिन का वो है अटेंशन, माने कि फोकस करना। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो आप अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाओगे। दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामिन। एंड तीसरा एक महत्वपूर्ण बात डोपामिन के बारे में है कि डोपामिन से हमें ना प्लेजर, आनंद आता है। जैसे कोई हमें कोई बख्शिश देता है तो कितना आनंद होता है ना, इसका ये डोपामिन का काम है। तो ये पुनः प्रस्थापित करने के लिए हम आयुर्वेद से क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करने वाली हूँ। अगेन कमिंग बैक टू आयुर्वेद, आयुर्वेद में जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद के सिद्धांत कभी भी चेंज नहीं होते। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर वात पित्त कफ से बना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वात, जो कि मूवमेंट्स के लिए कारक है, चाहे वो शरीर की हो या चाहे वो मन की हो, और उसी पे प्रॉब्लम होता है। इसलिए पार्किंसोनिज्म में वात बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है और उसको हमें फोकस करके ठीक मतलब ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सुधार उसमें हम ला सकते हैं। तीसरी बात मैंने बोली कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छी तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए। अभी अनीता जी ने बोला कि मैं लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ यही करती हूँ, आपको जब मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ तो मैं 30 से 40 मिनट तक आप दिन भर में क्या क्या करते हैं, पास्ट में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी लेती हूँ। और उससे मुझे पता चलता है कि क्या बिगड़ गया है, इसके लिए ये कंडीशन आई है। सो मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें पहला जो पन्ना होता है उसमें मैं दवाइयां तो पक्का लिख देती हूँ, लेकिन जो उसके बैक साइड का पन्ना हो उसमें मैं आपके लाइफस्टाइल में आप क्या सुधार लेना जरूरी है ये मैं अवश्य बताती हूँ। और ये भी बताती हूँ कि मेडिसिन आर लेस इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए उसको अगर फॉलो करें तो आप जल्दी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हो, और यही मेरा अनुभव है। आप सबको पता है कि हमारे सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सूर्य, क्योंकि उसकी वजह से हम जीते हैं। और हमारा जो जीवन है ना,
वो सूर्य से ही कनेक्टेड होता है। मतलब कि सूर्य जब उगता है तो हम भी उठते हैं, सूर्य जब ढलता है तो हम भी स्लो डाउन करते हैं और नींद लेते हैं। तो क्या करना चाहिए कि एक साधा सिंपल सूत्र है, आप खुद को निसर्ग से जोड़ो। अगर वो आप कर सकते हो तो आप अच्छा लाइफ जी सकोगे। माने क्या, सूरज उगने से पहले उठना है। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला है तो आप तैयार होके दरवाजा खोलते हो, ना कि वो आने के बाद आप तैयार होते हो। तो उसी तरह से सूर्य का हमें स्वागत करना चाहिए। इसके लिए हम सूरज उगने से पहले कुछ मिनट हमें तैयार होके उसका स्वागत करना चाहिए। और सूर्य ढलने के बाद ज्यादा खाना, पढ़ना, एंटरटेनमेंट, ज्यादा एक्सरसाइज ये हमें कम करना है। अगर हम देखते हैं 40-50 साल पहले का हमारा लाइफ था ना, मेरा जो बचपन था वो इतना अच्छा था, क्योंकि हम 8-8:30 बजे सो जाते थे, सुबह 5-5:30 बजे जगते थे और पूरा दिन हम बहुत एनर्जेटिक रहते थे। हमारे बचपन में, मैं 66 बॉर्न हूँ, 72 में टेलीविजन आया, वो भी कभी कभार ही हम देखते थे। हमें हमारे घर में जो पहले टीवी सेट्स आए उसमें से एक सेट हमारे घर में था, फिर भी रिस्ट्रिक्टेड टाइम था टेलीविजन का। तो इसके लिए कोई भी सिलेक्टेड कार्यक्रम ही हम देखते थे, 9 बजे तो पक्का सो जाते थे, और इसके वास्ते हमारी हेल्थ बहुत अच्छी थी। अभी देखो हमारे कितने प्रलोभन है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 1-1:30 बजे तक हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत लेट उठते हैं, बहुत देर तक सोते नहीं। ये जो सब हम कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो पार्किंसोनिज्म जैसी बीमारियां है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि एक आयुर्वेद में कंसेप्ट है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोई भी बीमारी आप पे इतना स्ट्रांगली अटैक नहीं कर सकती, और कर भी लेती है तभी आप अच्छी तरह से उससे बाहर आ सकते हो। तो इसके लिए हमने हमारा इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल जो चीजें हैं वो इतनी बुरी तरह से कर रखी है कि कोई भी डिसीज हमें इजीली अटैक कर सकता है। इसका अनुभव हमें कोरोना के टाइम दिया है कि जो लोग पहले से उनकी अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी और वो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उसके ऑपोजिट जो लोग अच्छे, उनका इरेगुलर लाइफस्टाइल था या कोई बीमारियां पहले से उनको थी, तो उसमें कोरोना ने ज्यादा असर दिखाया। यही सूत्र मैं आप फिर रिपीट करना चाहती हूँ कि गो बैक टू द नेचर, निसर्ग के जैसे जीने का प्रयास करो। लो जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, अच्छा खाना खाओ। अभी मैं खाने के बारे में भी बताने वाली हूँ। खाने के बारे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको क्या खाना है? तो सीजनल, मतलब वो सीजन में उगा हुआ। रीजनल में रुचिता दिवेकर का इस बारे में बहुत मुझे अच्छा लगता है। रीजनल माने कि आपके इधर जो उगता है वही खाओ, और तीसरा है जो आपके जीन्स में है वो खाओ। आप अगर गुजराती हो तो आपके स्टाइल का खाना खाओ। मैं महाराष्ट्रियन हूं तो मैं महाराष्ट्रियन खाना खाऊं। कभी कभार साउथ इंडियन इज ओके, कभी कभार पंजाबी इज ओके, बट इफ यू स्टार्ट eating continental and Punjabi all the time, your digestive system doesn't know how to digest it. आपके पाचन संस्थाओं को वो कैसा पचाना है वो इतना अच्छी तरह से आता नहीं। तो कुछ टाइम के लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैनेज कर लेती है, लेकिन बाद में उसके बहुत ही बुरे असर होते हैं। तो मेरा भी मानना है कि जब भूख लगे तभी बहुत अच्छी तरह से बैठ के, कंसंट्रेशन से, प्यार से, कृतज्ञता से आप जो भी आपके प्लेट में है वो खाया करो। कृतज्ञता वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर यू ईट फूड, यू जस्ट प्रे एंड देन स्टार्ट ईटिंग। आपका फुल फोकस आपके फूड पे ही चाहिए, न कि टीवी देखते हुए एक तरफ खा रहे। ऐसा कभी भी करने का नहीं। कैसा खाना चाहिए? उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, माने के वो गरम और ताजा चाहिए, और उसमें स्निग्धता चाहिए, मतलब कि घी और ऑयल चाहिए। फैटलेस डाइट इज नॉट गुड फॉर यू, रॉ डाइट इज नॉट गुड फॉर यू। तो सिर्फ मैं यही आइडिया आपको देती हूँ कि आपके घर में जो बरसों से चला हो
जो कुछ बना होता है वही फूड आपके लिए अच्छा साबित होता है, न कि कुछ तो फैड या डाइट, कीटो डाइट, ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत होती नहीं। अगर आप ऐसा ही अच्छा खाना घर में हो बनाया हुआ खाते हो तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। मैंने एक टर्म यूज किया है कि ताजा खाना खाना है। ताजा खाना माने क्या? कुकिंग के बाद में 42 मिनट्स के बाद वो खाना बासी हो जाता है। तो बनाया और खाया, ऐसा दिन में एक बार तो ट्राई करो। मुझे पता है कि सब वी आर वर्किंग, सो वी कैन नॉट ईट फ्रेश फूड व्हेन वी आर हैविंग लंच, लेकिन डिनर तो ताजा हो सकता है। ऐसा कुछ तो मॉडिफिकेशंस करके ज्यादा से ज्यादा घर में बना हुआ सिंपल फूड अगर आप लेते हो तो इससे आपकी पार्किंसोनिज्म में भी सेहत बनी रहेगी। दूसरी चीज है कि लाइव फूड खाना है। लाइव फूड माने अच्छे फल, ताजी सब्जियां, इसका प्रयोग अगर हम करें तो उससे आपके शरीर को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अभी मैं दो चीजें बोलने वाली हूँ जिससे आप शॉक में जाने वाले हो। मैं पहली चीज ये बोलने वाली हूँ कि आप जितना लगे उतना ही पानी पीना है, न कि 2 लीटर 3 लीटर, कोई 4 लीटर पीता है इसके लिए। पानी जब आपको प्यास लगे तब जितनी प्यास हो उतनी ही बैठ के पीना चाहिए, न कि खड़े रह के। तो हर एक की पानी की मात्रा अलग होगी, क्योंकि मैं अलग हूं, आप अलग हो। तो ये पानी कम ही पीना चाहिए, कम इन द सेंस आपकी तृष्णा जितना ही पीना चाहिए। और दूसरा मैं रेकमेंड करने वाली हूँ, नेवर एवर ईट स्प्राउट्स। ये बहुत से लोगों को शॉक में ले जाने वाला है। स्प्राउट्स माने क्या? जो मूंग या मटकी होती है, उसको जब स्प्राउट आते हैं तो वो स्प्राउट्स क्या होता है पता है? वो बहुत हेवी होते हैं डाइजेशन में, और वो न झाड़ है न बीज है, तो बीच में वाली अवस्था है। और बीच में वाली अवस्था कभी भी हमारे शरीर को फायदा नहीं देती। जैसे कि आप चाय बना रहे हो और 2 मिनट के बाद आपने गैस बंद कर दिया और ऐसे ही फिल्टर करके चाय दिया, तो चलेगा क्या? उसकी टेस्ट आएगी? तो बीच में का जो होता है उसको हम आम बोलते हैं, जो कच्चा भी नहीं और पक्का भी नहीं, बीच में की स्टेज है, इससे व्याधियां होती है। तो कभी भी स्प्राउट्स खाने नहीं चाहिए। अगर आपको उनका कोई बनाना है तो विदाउट स्प्राउट और जस्ट सोक करके उनका आप सेवन जरूर कर सकते हो। कभी भी अधमूरा दही ना खाना नहीं चाहिए। अधमूरा दही माने वो दही भी नहीं बना है और दूध भी नहीं है, ऐसी जो बीच में की अवस्था होती है ना, वो बहुत से लोगों को खाना पसंद होता है, लेकिन वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। इससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो स्पेशली पार्किंसोनिज्म में अगर हम डाइट का विचार करते हैं तो ताजा गर्म खाना, अच्छी मनस्थिति में खाना, फोकस से खाना, सॉफ्ट करके खाना। मैंने वो बात बताई है कि आप स्वालो भी नहीं कर सकते, आप चू भी नहीं कर सकते। तो घर में बनाया हुआ सॉफ्ट डाइट अगर आप ले रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, लाइव फूड ले रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज हमेशा याद रखना, खाना कब खाना है? जब आपको भूख लगे तभी। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया इसलिए मैं खाऊंगा, नहीं। खाना जब आपको भूख लगती है तभी खाना है। कितना खाना है? हमारे स्टमक के 4 भाग करके उसमें का 1 भाग खाली रखना है। मतलब हमारे कैपेसिटी से थोड़ा कम खाना है। और पानी कैसा पीना है? खाने के वक्त थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, न कि पहले पानी पीना है या बाद में पानी पीना है। मुझे आज पक्का पता है कि आपको ये सब मैं जो बातें बोल रही हूँ वो शॉक में डालने वाली है, क्योंकि कई लोग पहले ही पानी पी लेते हैं, कई लोग भोजन के टाइम बिल्कुल पानी नहीं पीते और आधे घंटे के बाद पीते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से आपको कैसा पानी पीना चाहिए? जब आप भोजन कर रहे हो तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना सबसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो इसी हिसाब से जब भूख लगे, जितनी भूख लगे, तब घर में बनाया हुआ सादा अन्न आप ग्रहण करोगे तो पार्किंसोनिज्म जैसे कंडीशन में भी आपका स्वास्थ्य बना रहता है, न कि ज्यादा उसका प्रोग्रेस नहीं रहता। दूसरा महत्वपूर्ण है कि पार्किंसोनिज्म में अगर आपको फुर्ती लानी है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम।
अभी लोग जिम में जाके जो बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं ना, वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही रॉन्ग है। आयुर्वेद के हिसाब से व्यायाम कितना करना चाहिए? अर्ध शक्ति, माने जब इधर स्वेट आने लगे तब हमें व्यायाम स्टॉप करना चाहिए। माने कि मैं 4 किलोमीटर आराम से चल सकती हूँ, तो हर रोज 2 किलोमीटर ही चलो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी जितनी है उससे हाफ ही कैपेसिटी आपको यूज करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्यायाम कौन सा करना चाहिए? सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम, और चलना जो हमारे लिए नेचुरल है, न कि दौड़ना। ये जो 3 व्यायाम है ये बहुत फायदेमंद रहते हैं। वेट लिफ्टिंग या बहुत ज्यादा रनिंग, ये एक्सेसिव व्यायाम किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। हम हर रोज देख रहे हैं कि वो जो हेल्थ क्लब है उसमें एक 30 बरस के आदमी मर गया, उसका हार्ट अटैक आ गया। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि एक कारण है अति व्यायाम। ज्यादा व्यायाम करना अपने सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अर्धशक्ति व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और पार्किंसोनिज्म के पेशेंट के लिए व्यायाम करना तो बहुत इसेंशियल है, क्योंकि उनसे वो मोटिवेट रह सकते हैं। व्यायाम का एक बहुत अच्छा परिणाम हमारे ब्रेन पे होता है कि हमें अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर। तो इसके लिए बहुत केयर से इन लोगों को हर रोज व्यायाम तो करना ही चाहिए। और क्या कर सकते हैं पार्किंसोनिज्म के लोग? धूप में बैठना जैसा अच्छा कोई नहीं है। डायरेक्ट हम बोलते हैं आरोग्यम भास्करात इच्छेत, माने आरोग्य आपको पाना है तो सूर्य से मांगो। तो अगर आप सूर्य के मतलब सूर्य जब है उगता है सुबह 9-10 बजे या 3-4 बजे दोपहर को, उसमें कम कम धूप रहती है, अगर उसमें आप बैठो तो आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, आपको बहुत उससे मदद मिलती है। दूसरा एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या आपका चुक रहा है ये देख के करेक्ट योर लाइफस्टाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हंसना, हास्य योग बोलते हैं। खिलखिला के हंसते हो ना, तो आपके सभी सिस्टम को बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलता है। तो इन लोगों को पक्का कुछ सीरियल देखे या कुछ रीड करो, लेकिन उनको हंसने के लिए इनकरेज करना चाहिए। इससे इनकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी रह सकती है। अगर आयुर्वेद की हिसाब से अगर कोई स्पेशल फूड आइटम्स के बारे में मुझे बोलना है, तो मैं जरूर जिक्र करूंगी मिलेट्स का। ज्वार, बाजरा, रागी, ये फूड उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। राइस भी बहुत अच्छा रहता है। और एक कंसेप्ट है, अभी अभी बूम में है वो कंसेप्ट, अल्कलाइन डाइट। सो अल्कलाइन डाइट ये सभी रोगों के लिए अच्छा है। आप गूगल कर सकते हो। मैं अभी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे और भी उपचार के बारे में बताना है। तो ये बैकग्राउंड हो गया। अभी मैं डायरेक्टली आयुर्वेद के हिसाब से पार्किंसोनिज्म को क्या बोलते हैं ये आपको बताने वाली हूँ। हम इसको बोलते हैं कंपवात, माने कि जो कांपता है। तो माधव निदान करके एक ग्रंथ है, उसमें वात व्याधि करके एक चैप्टर है, इसमें इसका जिक्र आया है और उसका वर्णन ऐसा किया है। लेग्स, शिर यानी हेड, एंड सर्वांग यानी फुल बॉडी जो कंपन में होता है, तो ये डिसीज होता है। दिस इज कंपेरेबल, मतलब एग्जैक्टली पार्किंसोनिज्म कंपवात है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटी है। और उसका ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि कंपवात में मेन शब्द क्या है? वात। तो वात ऐसी एनर्जी है कि वो अगर वो अच्छी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिगड़ गई तो डिजास्टर होता है। तो इस रोग में ऐसा ही होता है कि वात बहुत बैडली बिगड़ जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है पता है? मसाज, स्टीम, एंड पेट में ऐसी कोई दवा देना जिससे वो वात कम हो जाए। तो पेट में की दवाई के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसका आपको कोई यूज नहीं है। लेकिन रेगुलर मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गर्म पानी से अगर नहा सकते हो तो ये डिसीज कंट्रोल में रह सकता है। रेगुलर मसाज के बारे में तो हम दिनचर्या माने कैसे दिन में जीना है, ऐसा आयुर्वेद का एक
चैप्टर है, उसमें तो हम बोलते हैं कि हर रोज हर किसी ने स्नान के पहले हमारे सब शरीर को स्नेह यानी तेल लगाना चाहिए। इससे हमारी आयु बढ़ती है और बाकी भी ज्यादा बहुत अच्छे लाभ उसके होते हैं। तो इस रोगियों के बारे में तो ये मसाज का बहुत अच्छा रोल होता है। मसाज माने क्या, प्लेजेंट टच, तो टच थेरेपी भी हो जाती है, तेल से वात भी कम हो जाता है, और वो जो रोगी होता है उसकी आयु लंबी होती है और वो अच्छी तरह से सुधर जाने के चांसेस थोड़े रहते हैं। कंप्लीट क्योर इज नॉट पॉसिबल, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। तो इसी हिसाब से आयुर्वेद का अगर हम सपोर्ट ले तो ये जो कंडीशन है वो मैनेज करने में बहुत ज्यादा हमें यश मिल सकता है। अभी जो मैं एक विशिष्ट उपचार पद्धति के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जो मैं हमेशा कंपवात हो या डिमेंशिया हो या अल्जाइमर्स हो, ऐसे जो डिसीज है उसमें मैं एक बहुत अच्छा थेरेपी करती हूँ। इसको बोलते हैं विद्ध कर्म एंड अग्निकर्म। ये विद्या कर्म एंड अग्निकर्म गए 2 साल से मैं प्रैक्टिस में ला रही हूँ। विद्या माने टू पंक्चर, एक्यूपंक्चर जैसा ही है, लेकिन एक्यूपंक्चर से भी पुरातन शास्त्र है हमारा। इसको हम पैरासर्जिकल प्रोसीजर इन आयुर्वेद भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटी नीडल होती है जिसको हम इंसुलिन नीडल बोलते हैं। तो ये 24 नंबर की नीडल होती है। मैं खोल के भी आपको दिखाने वाली हूँ। ऐसी छोटी सी सुई रहती है जो पॉइंटेड रहती है, और ये हॉलो है, मतलब ये ओपेक नहीं है। जो एक्यूपंक्चर की नीडल होती है ना, वो हॉलो नहीं रहती। तो ये अगर चुभाते हैं तो इससे खून भी आ सकता है, और कभी कभार खून आना अच्छा सिम्टम होता है। तो शरीर में ऐसे कोई पॉइंट्स है कि जिधर अगर इस सुई से उनको चुभाया जाए तो स्टिमुलेशन मिलता है। ऐसे 7 पॉइंट्स फेस में होते हैं, और उसका एक क्या बोलते हैं, उसका एक क्रम होता है कब कौन सा पॉइंट करना। तो ये हफ्ते में 3 बार हम ट्रीटमेंट देते हैं, इसको बोलते हैं विद्ध कर्म। इससे ये डिसीज में बहुत ही फायदा होता है, डिसीज मैनेज करने में और कंडीशन मेंटेन करने में। तो ये विद्ध कर्म ऐसा हम यूज करते हैं। इसमें ये 24 नंबर की नीडल नहीं तो 26 नंबर की नीडल नहीं तो 24 नंबर की नीडल हम यूज करते हैं। मेरे गुरु हैं डॉक्टर राब गोखले, इनकी फोटो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने ये साक्षात सुश्रुत जैसे थे, ये सर्जन थे, ये हमें सर्जरी पढ़ाते थे। इन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों में से सब रेफरेंसेस निकाल के अभी इस एरा में, इस टाइम में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई 55 इयर्स की, उसकी प्रैक्टिस भी की, और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हम पाते हैं। उसको बोलते हैं विद्ध कर्म। विद्ध मीन्स टू पंक्चर। अभी विद्ध से क्या होता है पता है, जब हम ये चुभाते हैं तो और वो सुई बाहर निकालते हैं, तो शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो रक्त के साथ शरीर के बाहर आ जाते हैं। कभी हम रक्त देख सकते हैं, कभी कभार रक्त देख भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ। मैं रेगुलरली इसकी ट्रीटमेंट खुद के लिए भी लेती हूँ। तो आज भी मेरा सेशन हो गया है, मैंने 17 जगह सुई ये चुभोई है। मेरी सहेली मुझे ट्रीट करती है और मैं उसको करती हूँ। तो मुझे जब मैं ये ट्रीटमेंट करती हूँ तो आई फील वेरी ओपन। सो टुडे आई वेंट टू ताराचंद हॉस्पिटल टू माय फ्रेंड्स प्लेस टू गेट अ ट्रीटमेंट, and I feel so light in my head that I can focus in a better fashion. तो जब भी कभी कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हो तो मैं करा लेती हूँ ये ट्रीटमेंट से, और मुझे खुद को इससे बहुत लाभ, स्पेशली विथ मेंटल कंडीशन, मुझे अच्छा लगता है। तो सीधी सी बात है, पार्किंसोनिज्म में बहुत मेंटल कंडीशंस जो होती है, इसके लिए इस ट्रीटमेंट का बहुत अच्छी तरह से लाभ मिलता है। और भी एक हम करते हैं, ये विद्ध कर्म के साथ हम अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म माने फायर, पॉटरी। तो ये जो है, ये एक निडल है, सोने की निडल है, 14 कैरेट की निडल है। वो हम इनडायरेक्ट मेथड से इधर मोमबत्ती लगा के हम वो गर्म करते हैं, और ये जो पॉइंट है उसमें हम सेक देते हैं। जैसे कि ये पॉइंट हुआ तो ये ऐसा सेक देते हैं, और इससे स्टिमुलेशन मिलता है, और इसमें ये पेन मैनेजमेंट में भी बहुत कारीगर है,
और ब्लॉक्स भी इससे निकलते हैं। तो पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में विद्ध कर्म और अग्नि कर्म इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनका जो जीने की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी तरह से रहती है, प्रोग्रेस कम होता है और रुग्ण बहुत अच्छा डट के सामना उस कंडीशन का कर सकते हैं। ये विद्ध कर्म है। विद्ध मीन्स टू पंक्चर। अभी ये पेशेंट है, ये मेरा मित्र है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ विद्या एंड अग्नि कर्म। ये मेरी टीचर उनको कर रही है। खून आता है तो वो पोंछ लेते हैं हम। उनको नेजल पॉलिप था और आंखों की समस्या थी कि उनके आंखों में से पानी आता था। ये जो दूसरी केस है वो आप ये देख रहे हो, उनको कोई तो ग्लैंड है नीचे, थायराइड ग्लैंड, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये भी हमारी स्वाध्याय थी। ये पहले दिन उनको किया था और हर रोज हम करते थे और 8वें दिन ये कम हो गया था। ये जो देख रहे हैं, मैंने जो बोला ना सुवर्ण शलाका, तो इनडायरेक्ट मेथड से हीट देते हैं। ये पीठ का कोई प्रॉब्लम है तो भी हम पीठ के ऊपर देते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क हो, इसमें भी इसका बहुत अच्छी तरह से असर होता है। ये जो है वो बहुत पिक्यूलर कंडीशन है। जैसे कि हमारा बहुत सारे लोगों की एडी दुखती है, तो ये जो शला, इसको शोलाका बोलते हैं, ये मिट्टी का एक ऐसा होता है, वो गरम करके उसके एडी पे उन्होंने वो लगाया है और उससे एडी का दर्द कम हो जाता है। तो इसी तरह से अग्नि कर्म माने मेडिकेटेड पॉटरी, different things we use and we get excellent result. और एक मैं बताना चाहती हूँ, ये एक लोहे की, इसको हम शलाका बोलते हैं, माने कि एक ऐसी लंबी है, तो ये गरम करके डायरेक्टली हम, अगर आपका घुटना दुखता हो तो ऐसे टच करते हैं पॉटरी, उससे बिल्कुल उसका दर्द चला जाता है। तो दिस इज माय सुपर स्पेशलिटी, अग्नि कर्म एंड विद्ध कर्म, and I'm really grateful and very happy to share with you that this is an effective parasurgical procedure which can be practiced in terminal cases like cancer, Parkinsonism, many such conditions where we cannot treat the person with normal therapies. बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। मैं टॉल क्लेम नहीं करने वाली, लेकिन आपको मैं मेरे अनुभव से बोलती हूँ कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है। आज पार्किंसोनिज्म का ही विषय है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स देना जरूर चाहती हूँ कि जब किडनी स्टोन होता है ना, तो उसका दर्द बहुत होता है और उसके हॉस्पिटल में जाके वो एडमिट करके सलाइन लगाते हैं। लेकिन इसमें हम एक विद्ध करते हैं, जब तक सुई बाहर निकलते हैं तब तक पेशेंट का पेन चला जाता है। ऐसे इसके स्पेशलिटीज बहुत है, किसमें हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे डिसीजेस इससे हम ट्रीट कर सकते हैं। और अभी मैं एक डिमेंशिया विथ लुई बॉडी की एक एक्सट्रीम केस है, वो विद्ध कर्म और अग्नि कर्म से ट्रीट कर रही हूँ और मुझे बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। एक ही केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है। So thank you, ma'am. The first question was from Lalita Bansal Madurai. She had asked when we were talking about the symptoms, smoking people या उनके साथ रहने वालों के साथ का भी risk है क्या because when we were talking about pesticides and sports injury. The thing injury, is that she has rightly pointed a point that passive smoking can be dangerous. Yes. Okay. Next question is Kuntal Ji's question. If in the long run, dopamine is not very useful, do you suggest to stop that medicine, which is okay? Because every time doctor keeps increasing doses, which is really painful. And not at all. You never stop it. You have to obey to the doctors and additionally do the things which I say. Okay. The next question is from Neeta Pancholi. डोपामिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोपामिन तो आपको लेना ही पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट द साइड इफेक्ट, दैट इज द ओनली वन थिंग व्हिच इज गोइंग टू सेव यू।
Okay. The next question is from Kuntal ji, where we were talking about diet. She's asking, in that case, we can't eat apple because probably during the chewing or thing, and also related to the diet ahar that we were talking about. No, you can eat the apple just जैसे बच्चों को देते हैं ना, थोड़ा सा Mash करके. steam करके मैश करके आप जरूर ले सकते हो. Okay. Next question is from Neeta Pancholi. Sprout को steam या सौते करके ले सकते हैं क्या? नहीं, stop the sprouts. Stop. Okay. Okay. The next question is from Namrata. She says, why do we need to sit to drink water? Because if we stand and drink water, that goes directly to the large intestine and causes problems. कभी आप खड़े रह के देखो पानी पी के, अगर कोल्ड वाटर लिया है तो आपके अम्बिलिकस तक उसका फीलिंग आता है, और वाटर का भी डाइजेशन होना जरूरी होता है, इसलिए अगर बैठ के पी जाए तो वो सिस्टमेटिकली नीचे जाता है और उस पे डाइजेशन उसका हो सकता है, नहीं तो घुटनों में दर्द जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन. Okay. Next question is from Bridget Menezes Kotian. Does overdose of alcohol and smoking from a young age ends with Parkinson? Of course. Okay. भी लेना ही चाहिए. वो सरदेसाई करके थे, बहुत बड़े क्लिनिशियन थे, वो बोलते थे अल्कोहल कब स्टॉप करना चाहिए? पहला घूंट लेने के पहले. Right. Next question is from Pooja Wazirani. Is there treatment for liver cirrhosis in Ayurveda? Sure, है. Okay. Kuntalji's point regarding the answer for apple is, as regional fruit, I wanted to ask about apple. Sorry, Kuntalji, I misunderstood. She has rightly chosen the point. Yes, apple हमारा तो नहीं हो सकता, कश्मीर में उगता है तो उन लोगों को अच्छा रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को एप्पल खाने की आदत होती है. I totally agree, it is not a regional fruit, so it shouldn't be eaten frequently. Go for your regional fruit, but कभी कभार मैश करके या स्टीम करके आप ले सकते हो. Rightly pointed. Thank you. Okay. Next question is from Neeta Pancholi. Parkinson या आयुर्वेद में रिजल्ट कितना है? My God, it's a very tough question to answer. Okay. It depends on a lot of factors. I would say that you have a solution. I mean, you have an alternative. That's all. Okay. No tall claims. Again, one more question from someone who's on iPad. Is there any treatment for eye pressure in your treatment of therapy? 100% mastery again. Okay. Again, Bridget Menezes Kotian says, my husband suffers from Parkinson's since the last 15 years. He just switched over to Ayurveda since February 22. Now he's better. He also takes Pacitane half twice a day and Syndopa 1 tab per day. That's great. 15 years he has survived very well. That means he is a strong person. Congratulations. और अभी वो आयुर्वेद ले रहे हैं, तो I hope all the best for him. Kavita ji says, constipation and hyperacidity also leads to Parkinson's. It's a question. Not really, but anyway, digestive disorders lead not only to Parkinson, but so many other diseases. So that should be taken care. Okay. Next question is from Sushila. Is sprouts harmful in general or only for Alzheimer's patients? General sprouts are harmful. Okay. And one more question from Kavita. Boiled whole moong can be taken? Without sprouts, yes. Ma'am, does epilepsy lead to Parkinson? No, not really. Maybe if the lesion is the same, then maybe, yes. Or nearby lesion, yes. Thank you. My pleasure. Or if no more questions, then I will request Nisha ji to continue with the session. I'm very eager to listen to her now. We also. Yes. Okay. So thank you so much, Pradnya ma'am. Nisha ji, over to you. थैंक यू प्रज्ञा मैम, इतने अच्छे लेक्चर के लिए. अब मेरी हालत आप सबको बता दूं कैसी हो रही है. सभी को मालूम है, हम सभी कभी न कहीं बच्चे थे, एग्जाम देते थे,
और पेपर लिखते वक्त टीचर पास में खड़ा होता था, तब कैसी हालत होती थी, आज मेरी हालत बिल्कुल वैसी हो रही है। और क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि जब मन ऐसा डरता है ना, तब कौन सी मुद्रा काम में आती है?